Hello everyone, this is Gansham Bajaj. I hope you all are doing very well. In this video, I am going to teach you Kirchhoff law. With the help of Kirchhoff law, we can find the value of current, we can find the value of potential drop across any resistor in simple circuit as well as complex circuit. You can see I am going to make one complex circuit and we'll try to learn how we can find the value of current in each branch. With the help of Kirchhoff law, we can find the value of current in complex circuit also. Kirchhoff law has two parts. The first is Kirchhoff current law and the second is Kirchhoff voltage law. Let's start with Kirchhoff first law, which is also called Kirchhoff current law as well as junction rule. It states that in an electric circuit, the algebraic sum of current at any junction is zero. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पे जो करंट का एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होगा. Make clear first what is junction. Junction is the point where three or more branches meet. Kirchhoff first law, जिसे Kirchhoff current law भी कहते हैं, it says that in an electric circuit, किसी भी electric circuit में the algebraic sum of current at any junction is zero. जंक्शन पे करंट का algebraic sum zero होता है. In other words, also you can say the sum of current entering a junction is equals to the sum of current leaving that junction. किसी भी जंक्शन पे जितनी भी आने वाली करंट हो उन सभी का सम इज इक्वल टू उसी जंक्शन पे जितनी भी करंट जा रही है उन सभी के सम के इक्वल होगा. किसी भी जंक्शन पे द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट. इन मैथमेटिकली टर्म्स किरचॉफ फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. आई एम गोइंग टू डिस्कस सम साइन कन्वेंशन व्हिच आर टू बी फॉलोड. The current flowing towards the junction are taken as positive and the current flowing away from the junction are taken as negative. जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है हम उसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसको हम नेगेटिव लेंगे. Now we'll see a circuit. There is a junction at which I1 and I2 are coming and I3 and I4 are going. So we'll take I1 and I2 positive and I3 and I4 negative. KCL लगाने के लिए हमें I1 और I2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और I3 और I4 को नेगेटिव लेना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू KCL सिग्मा I इक्वल्स टू जीरो. सो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू जीरो. I1 और I2 देखिए आपने पॉजिटिव लिए बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन. I1 प्लस I2 and I3 and I4 you have taken negative. Why? Because they are going from the junction. So I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equals to 0 according to KCL sigma I equals to 0. Suppose that sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. Now see a circuit. Let's see how can we use KCL. You can see 4 ampere is coming towards the junction. 3 ampere is going away from the junction. Similarly 2 ampere is coming towards the junction and I is going away from the junction. तो 4 ampere और 2 ampere को हम पॉजिटिव लेंगे और 3 ampere और I को हम नेगेटिव लेंगे. So 4 minus 3 plus 2 minus I is equals to 0 according to KCL. So we'll get 3 minus I equals to 0 and I equals to 3 ampere. So the KCL is sigma delta I equals to 0. Kirchhoff current law states that the current entering junction is equals to the current going from the junction. As you can see the 5 ampere is coming towards the junction and 3 ampere and 2 ampere they are going away from the junction. So the 5 is equals to 3 plus 2. You can also write I1 is equals to I2 plus I3. Sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. Now I am going to discuss a very important question. It's a board oriented question. On which conservation principle Kirchhoff current law is based? So answer is that it is based on the law of conservation of charge. कौन से principle पे Kirchhoff current law based है? So answer is that it is based on the law of conservation of charge. Charge neither be created nor be destroyed. It can be transferred only. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि किसी भी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा. करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला जाएगा. क्या किसी जंक्शन पे चार्ज क्रिएट होगा? चार्ज क्रिएट नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लेट्स डिस्कस अबाउट किरचॉफ सेकंड लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ. अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के अंदर जो क्लोज लूप है उसके अंदर पोटेंशियल के अंदर जितना भी चेंजेस होगा उनका हम सम करेंगे तो वो जीरो होगा. किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल के अंदर जितना भी चेंजेस हुआ है
अगर हम उसका सम कर दें तो किसके इक्वल होगा? 0. अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0. इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसी भी क्लोज लूप में जितने भी सेल हैं अगर उनके ईएमएफ का सम कर दें वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इन इट. किसी भी क्लोज लूप में जितने सेल हैं उन सेल्स का अगर हम एल्जेब्रिक सम कर दें तो वो इक्वल होगा द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स इन इट. किसी भी सर्किट के क्लोज लूप में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इन इट. आप देख सकते हैं सेल का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट. अगर आप सभी सेल के पोटेंशियल ड्रॉप का सम करेंगे तो 10 वोल्ट ही आएगा. नाउ विल सी किरचॉफ वोल्टेज लॉ. हाउ कैन वी राइट मैथमेटिकली? Mathematically, you can write sigma delta V equals to 0. In a closed loop, the algebraic sum of change in potential must be 0. Also, we can write sigma E is equals to sigma IR. Means the algebraic sum of EMFs of the cell is equals to the sum of the products of the current and resistances in it. Which principle is followed by KVL? So KVL is based on the law of conservation of energy. It is based on the law of conservation of energy. You can see there is a circuit in which we learn how we can apply KVL. First of all, we will see I current passes from the positive terminal of the cell and it passes through the resistor of resistance R. अब आपको इस बात का ध्यान रखना है I जो करंट है वो R में एंटर कर रहा है. जहाँ पे ये एंटर करेगा वहाँ पे आपको प्लस लगाना है और जहाँ से ये बाहर निकलेगा वहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है. रजिस्टर के अक्रॉस जहां से करंट एंटर करेगा वहां पे हम पॉजिटिव लिखेंगे और जहां से बाहर निकलेगा वहां हम नेगेटिव लिखेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. केवीएल लगाने के लिए आपको इस सर्किट के अंदर एक लूप लेना है. आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. आप देख सकते हैं इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है. अब आप देखेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज लूप है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए आपको प्लस ही लेना है. केवीएल लगाने के लिए आपको देखना होगा जो लूप है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, इसलिए आपको प्लस ई लेना है. और रजिस्टर के अक्रॉस आप जब लूप लगाएंगे तो आप देखेंगे माइनस से बाहर निकल रहा है, तो आपको माइनस आई आर लिखना है. तो इक्वेशन क्या बन गई? ई माइनस आई आर. एंड अकॉर्डिंग टू केवीएल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. तो ई माइनस आई आर इक्वल टू 0. रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए उसका रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स वाई आप देख सकते हैं ई माइनस आई आर इक्वल टू 0. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. आपने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया, लूप को देखा आपने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो आपने प्लस ई लिया. फिर आपने लूप को देखा रजिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो आपने माइनस आई आर लिया. और अकॉर्डिंग टू केवीएल ई माइनस आई आर इक्वल टू 0 बिकॉज द सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0. हियर सिग्मा डेल्टा वी इज ई माइनस आई आर. हमने लूप अभी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, हम चाहे तो लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. जब आप लूप को क्लॉकवाइज लेंगे तो आप देखेंगे जो लूप जो है ना वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है. सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है ना, तो आप क्या लेंगे? माइनस ई. और आप देखिए अब लूप रजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो हम क्या लेंगे? प्लस आई आर. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस ई प्लस आई आर. ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल. और अकॉर्डिंग टू केवीएल इट इज इक्वल टू 0. तो माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू 0. क्लॉकवाइज लेने पे माइनस ई से बाहर निकला इसलिए माइनस ई लिया, रजिस्टर के अक्रॉस प्लस से बाहर निकला इसलिए प्लस आई आर लिया और माइनस ई प्लस आई आर को 0 के इक्वल कर दिया. लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच वी आर टू फाइंड करंट इन 5 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम. इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है? हमें 5 ओम ब्रांच में करंट फाइंड करना है, 2 ओम ब्रांच में करंट फाइंड करना है एंड 3 ओम ब्रांच में भी करंट फाइंड करना है. With the help of Kirchhoff law, we'll find current in each branch. Consider I1 current in 5 ohm branch and I2 current in 3 ohm branch. I1 current will pass through 5 ohm resistor and I2 current will pass through 3 ohm resistor. Will be the current in 2 ohm resistor. So we'll apply KCL at the junction point B. Junction point B पे I1 करंट आ रहा है और I2 करंट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू KCL 2 ओम से कितना जाएगा? I1 प्लस I2. जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा. 5 ओम से I1 करंट, 3 ओम से I2 करंट और 2 ओम से I1 प्लस I2 करंट.
अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 5 ओम से करंट जहाँ पे एंटर करेगा वहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे और जहाँ से बाहर निकलेगा वहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। तो 5 ओम के अक्रॉस देखिए आप प्लस माइनस लगा रखा है। सिमिलरली 3 ओम के अक्रॉस भी आपको ऐसे ही करना है। 3 ओम में I2 करंट जहाँ पे एंटर करेगा वहाँ पे आप प्लस लगा देंगे और जहाँ से बाहर निकलेगा वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 3 ओम पे आपने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया जहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, और जहाँ से बाहर निकल रहा है वहाँ पे माइनस लगा दिया। सिमिलरली आप 2 ओम पे देखिए, जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ पे आपने प्लस लगा दिया और जहाँ से बाहर निकल रहा है वहाँ पे आपने माइनस लगा दिया। अब हम दोनों क्लोज सर्किट में लूप लगाएंगे, एक में क्लॉकवाइज लगाएंगे और एक में एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। लूप हम कैसे भी लगा सकते हैं। पहला देखिए आप लूप, पहला हमने लूप कैसे लिया, क्लॉकवाइज, इसका नाम दे दिया लूप का ABEFA। क्लियर। अब आप देखिए सेल के अक्रॉस जो लूप है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, +12 लेना है। अब आप 5 ओम के अक्रॉस देखना, 5 ओम के अक्रॉस जो लूप है वो माइनस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और करंट कितना I1, तो -5I1 ले लेंगे। सिमिलरली आप देखिए 2 ओम के अक्रॉस देखिए जो लूप जो है वो माइनस से बाहर निकलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, -2I1 + I2 और = 0। दोबारा देखेंगे हमने KVL कैसे लगाया। सबसे पहले हमें लूप को देखना है। लूप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो +12 लेना है। क्लियर। अब रजिस्टर के अक्रॉस देखिए 5 ओम के माइनस से बाहर निकल रहा है लूप, तो -5 और करंट कितना I1, तो -5I1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 के अक्रॉस देखिए आप लूप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा, -2 × I1 + I2 एंड अकॉर्डिंग टू KVL चेंजेस इन पोटेंशियल = 0। अब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, -5I1 को उधर ले जाएंगे तो +5I1, सिमिलरली -2 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2I1 + 2I2 आ जाएगा। क्लियर। तो इक्वेशन क्या बनी, 5I1 + 2I1 + 2I2 = 12। अब 5I1 + 2I1 कितना हो जाएगा, 7I1, तो 7I1 + 2I2 = 12, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट लूप बनाया हमने कैसे, 12 -5I1 -2 × I1 + I2, और उसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 7I1 + 2I2 = 12। अब हम सेकंड क्लोज सर्किट में लूप लगाएंगे, जो कि हमने कैसे लगाया, लूप एंटी क्लॉकवाइज लगाया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है सेल के लूप, तो हम ले लेंगे +6। सिमिलरली लूप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है 3 ओम रजिस्टर के, तो -3 × I2, और 2 ओम के अक्रॉस से माइनस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो -2 × I1 + I2 = 0 कर देंगे। रीअरेंज करेंगे, 6 = कितना आ जाएगा, 3I2 + 2I1 + 2I2। अब 3I2 में 2I2 जुड़ करके कितना आ जाएगा, 5I2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2I1 + 5I2 = 6। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वल करने के बाद 10I2 से 10I2 कैंसिल हो जाएगा, 35 में से 4 जाएगा तो 31I1 बनेगा। इस सिमिलरली 48 बचेगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/31 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम I1 की वैल्यू रख देंगे, जैसे 2I1 + 5I2 = 6 है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे I1 की तो हमें I2 मिल जाएगा। I2 कितना आ जाएगा, 5/31 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू KCL देखा था हमने, I3 = I1 + I2 आ गया था, तो यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे, 48/31 + 18/31, तो आंसर कितना आ जाएगा, 66/31 एम्पियर। तरह किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम करंट फाइंड कर सकते हैं ईच ब्रांच में।